अगेन जिन लोगों का कैमरा ऑन नहीं है, प्लीज मेक श्योर कैमरा गेट्स टर्न्ड ऑन. ठीक है, जस्ट डू दैट. Okay, now let me start the screen share and let's start with the content. देखते हैं आज हमें क्या देखना है. Let's try to see something in terms of the cell. Let's try to understand few things over the cells. All right. So आज से आपका फाउंडेशन कोर्स बारिश वाला स्टार्ट हो रहा है. So that is the first chapter we are starting with. So फाउंडेशन कोर्स में आप एक चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कुछ चीजें लाइक थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़ाई जाएंगी, राइट? And we will teach you those things in a manner कि आपको याद रहे, आप उसे समझ पाए, right? That is the whole idea of creating a foundation, that you have a strong base of those particular topics, right? So we'll be doing that with the course of time. We'll be doing that, right? So you'll get to know that what we are doing. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. So this is the first slide and I have this question for you. मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे. आप हैंड रेस करके आंसर कर सकते हो मुझे. Cells, you have your cells inside the body, you have your cells in the plant. सारे living organisms के अंदर आपको सेल मिल जाता है. Something you know that. My question is, क्या आप सेल्स को बॉडी के बाहर ग्रो कर सकते हो? Can you grow cells outside the body? Please raise your hand to answer this. Can you grow cells outside the body? All right, someone has raised hand and someone has answered in the chat. I would be more than happy to hear you out. Sir, can I off my because I have a sufficient data? All right, Sapna, in that case, yeah, if that is the exception, then yeah, you can, yeah, surely. All right, बताइए बेटा, hand raise किया, just let me know what is your answer. Can I grow cells outside the body? क्या मैं cells को body के बाहर grow कर सकता हूँ? Can I grow them? Is it even possible? Or you are like, sir, पता नहीं, शायद हो भी सकता है, शायद हो सकता. Yeah, tell me. Prince, बताइए. Yes, sir, we can grow it if we provide it the sufficient nutrients, temperature, atmosphere. राइट प्रिंस, आपकी बात यहाँ पे सही है. यस, यू कैन एक्चुअली ग्रो द सेल्स आउटसाइड द बॉडी. आप उन्हें ग्रो कर सकते हो, आप उन्हें लैब में ग्रो कर सकते हो. यू जस्ट हैव टू एंश्योर दैट कि उन्हें आप राइट अमाउंट में नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट्स एंड मीडियम आप प्रोवाइड करो. सो इफ यू प्रोवाइड देम राइट काइंड ऑफ मीडियम, देन यू कैन ग्रो देम. So basically there is a term known as my tissue culture. There is a term known as your tissue culture, or you have a term that is called as my cell culture. तो बेसिकली आप ग्रो करते हो सेल्स को आउटसाइड द बॉडी. दैट इज समथिंग डन. आपके कई सारे लैब्स के अंदर आप ये करते हैं. लाइक मेनी ऑफ द लैब्स लाइक थ्रू आउट द कंट्री डू दैट, और ये किया जा सकता है. ठीक है, तो ये बात है. यस, यू कैन ग्रो द सेल्स आउटसाइड द बॉडी. दैट्स वन थिंग शुड बी क्लियर टू. ये जो पिक्चर आपके सामने यहाँ पे है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ टिश्यू कल्चर. ये बेसिकली आपके पिक्चर नॉट टिश्यू कल्चर, इट इज अ पिक्चर ऑफ योर सेल कल्चर, जहां पे आप सेल्स को पेट्री डिश के अंदर आप ग्रो कर सकते हो. कैन एक्चुअली ग्रो देम इन द पेट्री डिश. So as Prince have told us, बिल्कुल आप सेल को ग्रो कर सकते हो. You have to provide them with the right medium. अगर आप एक right medium उन्हें प्रोवाइड करते हो, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, you maintain the temperature, yes, you can actually grow them outside the cell. And it's important. ये किया भी जाता है कई सारे रिसर्च पर्पस के लिए, कई सारे लाइक एक्टिविटीज के लिए, सेलुलर एक्टिविटीज को समझने के लिए. You do all those things. You actually do those things, right? Now in the human body and in all the living organisms you have the cell, right? हम cells को observe करते हैं with the help of my microscope. So microscope is something I'll be using all the time to observe the cell, right? आपके भी स्कूल में माइक्रोस्कोप होगा. So आपके स्कूल में जो आपके पास माइक्रोस्कोप है, उसका नाम क्या होता है? What is the microscope you have in the school? Yeah, tell me. Compound microscope. Yes, in your school you have your compound microscope, right? बिल्कुल सही. Now the thing is, compound microscope will have some limitations. बिल्कुल इसके भी कुछ limitations होते हैं, right? And the most advanced जो आपका है माइक्रोस्कोप, that is my electron microscope, जिसके अंदर आप काफी डिटेल में चीजों को आप देख सकते हो. So एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा before we move ahead. See, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अभी हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे सेल का. We'll try to see the history of the cell. So what you get to realize यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या समझते हो कि जैसे जैसे आपके माइक्रोस्कोप एडवांस होते गए, जैसे जैसे आपके माइक्रोस्कोप के अंदर आपको एडवांसमेंट होता हुआ आपको मिलता गया, बिकॉज ऑफ दैट वी वर एबल टू अंडरस्टैंड सेल इन अ मच मोर डिटेल. उसके वजह से हम लोग सेल को ज्यादा अच्छे से समझ पाए.
आज की डेट में यू हैव समथिंग लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच इज द मोस्ट एडवांस माइक्रोस्कोप यू कैन हैव. उसको यूज करके आप बेसिकली राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया को काफी क्लियरली देख सकते हो, राइट. बट पहले ऐसा नहीं था. पहले की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहले यू नेवर हैड समथिंग लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन छोड़ा, आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी नहीं था. So let's try to see the history of the cells. Let's try to understand कि हमारे cells की history क्या रही है and how they have actually, like how we are able to understand them. So let's try to have a look at them, right? तो यहाँ पे आपके सामने कुछ pictures है. We have a tower, we have a monument and we have a building. ठीक है, तीनों आपको यहाँ पे चीजें दिख रही हैं. तीनों के अंदर काफी फर्क है, शेप के अंदर, स्ट्रक्चर में इनका काफी फर्क है. बट दे विल हैव वन थिंग इन कॉमन. इनके अंदर आपकी एक चीज यहाँ पे कॉमन रहेगी. क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें से क्या कॉमन रहेगा इन सब के अंदर? टेल मी. Sir, it is made up of bricks. Right, very good. It is all made up of my bricks. They all look very different from each other, but ये सारे आपके बने हुए यहाँ पे bricks है. They have one property in common, and that common property is going to be, yes, they are all made up of my bricks. बिल्कुल ये सारे bricks से बने हुए हैं. Same things आपके cells के साथ होती है. We have number of animals and plants throughout the world. Right, पूरे planet पे you have number of animals and plants, right? All of them have different shape, different structure, different lifespan, but सबके सब एक चीज से बने हुए. These are my cells. All of them are made up of one thing. That's going to be a cells. वही चीज आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है. There are millions of living beings on this planet, millions of them, right? And all of them have different shape and size, but सबके अंदर आपको यहाँ पे common क्या रहेगा? They are all made up of the same building block, and that is going to be your cells. सबके सब एक common चीज से बने हुए हैं यहाँ पे, and that is going to be your cells. Right? So that is something you are all familiar with. So how do we define cell? Cell is a common, basic, structural and functional unit of the living beings. ये आपका एक general आपका definition यहाँ पे हो जाता है आपके cell का, right? जो आप सबने बचपन से पढ़ा है. So there are few things you have already have seen in your like lower classes. वही हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं फिलहाल के लिए, ठीक है? Now let's talk about the discovery of cell. अब यहाँ से हम कुछ चीजों को यहाँ पे हम समझेंगे. So let's talk about the discovery. So I just write few things over here. So there was this person known as my Robert Hooke. very good, very good. You Yes, have few. sir. अरे बहुत बढ़िया, right? So you have this person known as by Robert Hooke. अब Robert Hooke, what he did ना, इन्होंने सबसे पहले आपके सेल को ऑब्जर्व किया. So he was the first person to observe the cell. अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सबसे पहले जो इन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया वो कौन से सेल थे? Dead cells. So dead cells of cork. Dead Dead cells of cork. ठीक cells है, of- right? Okay, great, बढ़िया. Dead Now- cells of the cork. You know those things, very good. So I'll tell you few things over here. तो एक प्लांट होता है, उसे हम कहते हैं स्पेनिश ओक. एक प्लांट है आपका यहाँ पे, उसे हम कहते हैं स्पेनिश ओक. सो स्पेनिश ओक जो आपका यहाँ पे ट्री था, बेसिकली इट्स अ ट्री, राइट? उस ट्री की जो बार्क थी, उस बार्क को उन्होंने वहां से निकाला. सो यू नो द बार्क ऑफ द ट्री, दैट इज समथिंग, वो सबके अंदर कॉमन ही होती है. तो बार्क को आपके रॉबर्ट हुक ने निकाला और उसके किए उन्होंने थिन स्लाइसेस. सो ही मेड सम थिन स्लाइसेस ऑफ द बार्क. तो इसके इन्होंने बनाया आपके यहाँ पे कुछ थिन स्लाइसेस. एंड नाउ दोस थिन स्लाइसेस जो भी उन्होंने यहाँ पे बनाए, दे वर ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप. और याद रखना, ये जो माइक्रोस्कोप उनके पास था, ये काफी लाइक पुराने टाइप का माइक्रोस्कोप था. इट वाज नॉट एडवांस वन, राइट? तो ये ऑब्जर्व देम अंडर द माइक्रोस्कोप. अब जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे इन थिन स्लाइसेस को देखा, सो ही सेड, क्या यहाँ पे जो मुझे कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, दे लुक लाइक अ हनीकॉम्ब. ही फाउंड सम कंपार्टमेंट ओवर देयर. उसे कुछ वहां पे कंपार्टमेंट दिखे, एंड दोस कंपार्टमेंट लुक वेरी मच लाइक अ हनीकॉम्ब. दैट्स व्हाट ही सेड. क्या जो कंपार्टमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, दे लुक लाइक अ हनीकॉम्ब. सो ही फाउंड सम कंपार्टमेंट, और इन कंपार्टमेंट को देखने के बाद ही फर्स्ट सेड, क्या ये सब मेरे हनीकॉम्ब जैसे दिख रहे हैं. दे आर लुकिंग लाइक अ हनीकॉम्ब. दैट्स वन थिंग ही सेड. सेकेंड चीज उसने क्या बोला, ही गेव देम अ नेम. He gave them a name. तो ये टर्म देख के उन्होंने यहाँ पे एक नाम दिया, and that name was my cellulae. So he gave a term over here, that's my cellulae. तो ये जितने भी कंपार्टमेंट उसे दिख रहे थे उस बार्क के अंदर, राइट? उस बार्क के अंदर जो भी उसे वहां पे कंपार्टमेंट दिख रहे थे, उसने वहां पे उन्हें नाम दिया. यू कॉल देम एज अ cellulae. अब यही नाम हमने अभी मॉडिफाई कर दिया है, एंड नाउ वी यूज अ टर्म लाइक अ सेल. Definitely जो हम लोग हमारा टर्म यहाँ पे यूज करें, that would be the cell over here, right? So that is one thing Robert Hooke did. अब जो बार्क में जो आपको यहाँ पे सेल्स मिलते हैं, you call them as a cork cell.
You are going to call them as a cork cell. और ये जो खाली कंपार्टमेंट आपको यहाँ पे दिख रहे थे, जो वो कॉर्क सेल जो आपका था ना, उसके बीच में आपको कुछ नहीं मिल रहा था, सेंटर में आपके पास कुछ नहीं था, यू ओनली हैड अ वॉल ओवर देयर. सो बाय लुकिंग एट द कॉर्क सेल ही रियलाइज कि यार ये तो मेरे डेड सेल है. कॉर्क सेल वर बेसिकली माय डेड सेल्स ओवर देयर. ये जो मेरे जितने भी सेल्स थे यहाँ पे, दे आर माय डेड सेल्स. सो कॉर्क सेल्स आर बेसिकली नथिंग बट यार दे आर गोइंग टू बी योर डेड सेल्स. इनके अंदर आपको कोई भी साइटोप्लाज्म या कुछ आपको देखने के लिए नहीं मिलता, राइट. सो दैट्स वन थिंग यू शुड बी क्लियर विथ कि बार्क में जो सेल्स होते हैं वो आपके डेड सेल्स होते हैं. And that is what Robert Hooke observed. अब रॉबर्ट हुक ने जब ये ऑब्जर्व किया मेरे सेल्स को सबसे पहली बार, तो उन्होंने एक बुक लिखी. आफ्टर ऑब्जर्विंग द सेल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ही रोट अ बुक एंड दैट बुक वाज कॉल्ड एज माय माइक्रोग्राफिया. उस बुक का यहाँ पे नाम था माइक्रोग्राफिया. तो ये बात आपने याद रखनी है. दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो कि ही रोट अ बुक ओवर देयर एंड दैट बुक वाज कॉल्ड एज माय माइक्रोग्राफिया. सबसे पहले कोई सेल किसी ने ऑब्जर्व किया था, तो यस ही वाज क्वाइट हैप्पी अबाउट दैट. तो उन्होंने वहां पे एक बुक लिख दी एंड दैट बुक वाज कॉल्ड एज माय माइक्रोग्राफिया. याद रखना दैट ही एक्चुअली ऑब्जर्व्ड अ डेड सेल. वो लिविंग सेल नहीं था, ठीक है. इट वाज नॉट अ लिविंग, इट वाज अ डेड सेल एंड दीस आर माय कॉर्क सेल. और कॉर्क सेल बेसिकली आपको मिलता है आपके बार्क के अंदर एंड दैट इज व्हाट रॉबर्ट हुक डिड एंड दैट इज व्हाट ही एक्चुअली ऑब्जर्व. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो अबाउट द रॉबर्ट हुक. ये इनकी कहानी है जो आपको यहाँ पे इतनी याद रखनी है. तो माइक्रोग्राफिया ये बुक का नाम याद रखना. दैट इज समथिंग रॉबर्ट हुक रोट, जहां पे उन्होंने सब मेंशन किया था कि उन्होंने क्या देखा, कैसे उन्होंने प्रोसीजर लिखा था ये देखने का. सो ऑल दोस थिंग्स ही रोट इन दैट पर्टिकुलर बुक. सो रॉबर्ट हुक इज वेल नोन फॉर ऑब्जर्विंग द वेरी फर्स्ट सेल. इन द ईयर 1665 रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, bark of a tree, Spanish oak था वो, right, under a self-designed microscope. And जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, so he was able to see a honeycomb like structure. ठीक है, आपको शेप वहां पे दिख रहा था. So he said कि यार ये तो honeycomb जैसे कंपार्टमेंट है. And those compartment were called as a cells. तब उसने सेल टर्म यूज नहीं किया था, तब उसने सेलुलर टर्म यूज किया था. प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग कि पहले के टाइम पे आप दो लैंग्वेज काफी ज्यादा यूज की जाती थी. एक तो आपकी ग्रीक और लैटिन. ग्रीक और लैटिन काफी आपकी वाइडली यूज की जाती थी आपके कोई भी लिटरेचर लिखने के लिए. So over here also he used the cellulae and then he made them into the cells, right? In Latin cells means small room. इसका basically मतलब यहाँ पे आपका होता है small room. That is what Robert Hooke did. ये था आपके रॉबर्ट हुक की कहानी. वो बुक का नाम याद रखिएगा जो उन्होंने वहां पे लिखी थी. ठीक है. Now let's move on and let's try to see something else. तो रॉबर्ट हुक ने मेरा यहाँ पे देखा था मेरा डेड सेल. So he observed the cell for the first time, but जो पहला सेल उन्होंने देखा था that was my dead cell, right? But now we'll try to see कि कौन था जिसने आपका सबसे पहले लाइव सेल देखा. Can any one of you can tell me who saw the live cell? Leeuwenhoek. Sir, Anton Leeuwenhoek. Anton von Leeuwenhoek. Okay, ठीक है. Von Leeuwenhoek. Anton von Leeuwenhoek was the person जिन्होंने सबसे पहले आपका लाइव सेल देखा था. So that is something you know that he was the one who actually observed the live cell for the very first time. अब इन्होंने सिर्फ एक लाइव सेल नहीं देखा था, याद रखना. Leeuwenhoek not only saw single live cell, इन्होंने कई सारे लाइव सेल देखे थे. He observed number of live cells. I'll give the example. He observed something like my protozoans. पानी में से निकाल के प्रोटोजोन्स को इन्होंने देखा था, right? Then he observed something like a spermatozoa. Spermatozoa को इन्होंने देखा, मतलब sperm को देखा था उन्होंने, like that is something he observed. He also observed something like your blood cells, like your RBC. So many cells were observed by him. कई सारे cells उन्होंने यहाँ पे observe किए थे. And that is why like he actually concluded कि यार cell आपके live cells भी होते हैं. So that is what he did. So basically Anton von Leeuwenhoek ने यहाँ पे क्या किया था? He actually observed the live cell और उसने बहुत सारे टाइप के सेल देखे थे. He observed the protozoans, spermatozoa, blood cells, कई सारे इन्होंने ऑब्जर्व किए थे. And that is what his contribution was. ये इनका contribution यहाँ पे था. ठीक है. See, understand one thing, ये सब जो हो पा रहा था ना, ये इसलिए हो पा रहा था because we have an advancement in the microscopy. हर कुछ सालों के बाद आपका माइक्रोस्कोप यहाँ पे एडवांस हो रहा था और उसके साथ साथ these people were able to observe, they were able to see much more detailed version of the cell.
वो और अच्छे से उन्हें ऑब्जर्व कर पा रहे थे। सो ये आपको इतना ही इसके अंदर याद रखना है, दैट इज व्हाट माय लीवनहॉक डिड, राइट। इवन देन अभी हमें कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन थी नहीं सेल को लेके। सी, लोग सेल को ऑब्जर्व कर रहे थे बट दे डिडंट न्यू कि यार ये कहाँ से आते हैं, करते क्या है, इनका एक्चुअली में फंक्शन क्या होता है। पीपल वर नॉट स्टिल क्लियर अबाउट दैट, ठीक है। सो याद रखना, एंटन वॉन लीवेनहॉक वाज अ पर्सन हु एक्चुअली ऑब्जर्व द लाइव सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसमें उन्होंने प्रोटोजोअन्स, स्पर्मेटोजोआ, ब्लड सेल्स को उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया था। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर। नाउ आफ्टर दैट, तो ये दो चीजें आपके यहाँ पे हो गई। अब हम बात करेंगे यहाँ पे उस पर्सन की जिसने सबसे पहले न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया। सो नाउ देयर वाज दिस पर्सन who observed the nucleus for the very first time in the cell. Sir, Robert Brown. Robert Brown. So now you have Yes, Robert Brown. right, all of you are true. So now you have this person called as my Robert Brown, and Robert Brown ने सबसे पहले आपका यहाँ पे न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था। तो क्वेश्चन यहाँ पे था कि इसने कौन से प्लांट में देखा था। So that was my orchid plant. So you have your orchid plant, और orchid plant के अंदर he observed कि orchid plant जो आपका था उसके roots के अंदर he observed the root cells. इसके जो roots के जो cells थे, इनके जो roots के जो cells थे उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया। So in that he observed the nucleus, right? So that is something Robert Brown did. ये इनका कॉन्क्लूजन था यहाँ पे कि ऑर्किड प्लांट के रूट्स के अंदर ही ऑब्जर्व द न्यूक्लियस। सो दैट इज समथिंग रॉबर्ट ब्राउन इज नोन फॉर, टू ऑब्जर्व द न्यूक्लियस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये तीन नाम है जिससे आप ऑलरेडी आप लोग वाकिफ हैं, रॉबर्ट ब्राउन, एंटन वॉन लीवेनहॉक, एंड देन यू हैव योर रॉबर्ट हुक। इन तीनों के कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थे वो आपको यहाँ पे याद रखना है। दिस आर द वेरी सिंपल थिंग यू कैन ऑलवेज रिमेंबर। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो चीजें आपकी लाइक थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। सो अपेरेंटली यू माइट थिंक कि सर ये तो बहुत ही लाइक सिंपल है। यस, इट इज क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। As we move ahead, we will go to see number of things over here in the chapter, which will be slightly difficult. I won't say difficult, slightly much more with the content. ठीक है। So ये हो गया आपका रॉबर्ट ब्राउन की यहाँ पे स्टोरी। So this is something we have seen. Now let's try to understand one more thing over here. आपका सेल को लेके there were some other scientists who were studying the cell in the separate part of the world. मतलब you have this something known as my Schwann and you have something known as my Sheldon. ये लोग separately cells को study कर रहे थे. So let's try to talk about them. So you have something like your Sheldon and Schwann. You have something like your Sheldon and Schwann. So now Sheldon was basically he was a zoologist. By the way, आप लोग बता सकते हो मुझे एक zoologist क्या होता है? या मनताशा बताइए। Animal studies. Alright, ठीक है। And ठीक है, so in that case botanist तो आप लोग जानते ही होंगे। Botanist is someone who is going to study the plants. Okay, so he was a botanist over here. अच्छा मुझे ये बताइए, एक zoologist की जॉब क्या हो सकती है आपके हिसाब से? Like just tell me. You know what is a doctor do? You know what is a dentist do? एक zoologist क्या करता होगा अपने काम के अंदर? Other than Mantasha, anyone else has any clue what kind of role a zoologist might be doing? रिजवान बताइए। सर रिसर्च करते हैं एनिमल्स के बारे में, उनके अंदर। ऑलराइट, एनिमल्स को लेकर रिसर्च करते हैं, ठीक है, वेरी गुड। आई गिव यू फ्यू मोर एग्जांपल। यस, ये लोग एनिमल्स को लेकर रिसर्च करते हैं, उसके साथ साथ दे कैन आल्सो वर्क इन अ जू, दे कैन वर्क एज अ क्यूरेटर। आपको जू के अंदर लाइक यू नीड समवन हु एक्चुअली नोज एनिमल बिहेवियर एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द जू। सो यस, दे कैन वर्क इन अ जू, दे कैन डू द रिसर्च। zoologist इवन आपके कई सारे लैब में काम कर सकते हैं। दे वर्क इन अ टॉक्सिकोलॉजिकल लैब, जहां पे आप एनिमल के ऊपर टेस्टिंग करते हो, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक ड्रग का क्या इफेक्ट हो रहा है एनिमल के ऊपर, वो काम हो जाता है zoologist का। यस, दे वर्क इन अ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पे वो लोग लॉज क्रिएट करते हैं, रेगुलेशंस क्रिएट करते हैं। सो यस, zoologist will have number of roles. सो याद रखना कई सारी और भी फील्ड होती है बायोलॉजी के अंदर। जनरली आई थिंक यू आर फेमिलियर विद द MBBS, dental, and to an extent आप लोग बायोटेक के बारे में आप पढ़ते होंगे, सुना होगा, but you have other fields also जहाँ पे you get different kind of work you get to see.
राइट. So Schwann and Sheldon were these two individuals over there. One was zoologist, one was botanist. और ये दोनों separately cell को study कर रहे थे. They were separately studying the cell, and later on collectively they gave us the cell theory. बाद में इन्होंने collectively आके हमें एक literature दिया, और literature उन्होंने जो हमें दिया था that was given in the year 1839. So in the 1839 they came together and gave us something known as your cell theory. तो इन्होंने हमारे हाथ में एक लिटरेचर रखा, एक बुक रखी, उसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ सेल थ्योरी. अब सेल थ्योरी में बेसिकली आपके यहाँ पे क्या हो रहा है? सो सेल थ्योरी आपके एक ऐसा लिटरेचर है, या मैं कहूंगा ऐसा एक बुक है, जिसके अंदर आपके पास है इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल. एक जनरल इंफॉर्मेशन जो सेल के उन्होंने यहाँ पे आपके सामने रखी थी. जैसे कि उन्होंने बोला कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी. सेल आपको हर एक एनिमल और प्लांट में आपको मिलेगा देखने के लिए, राइट. सेल कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस. तो ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स आपको जो मिली थी, दे वर गिवन इन द सेल थ्योरी, दैट लिटरेचर, एंड दैट इज गिवन बाय माय श्वान एंड शेल्डन ने हमारे सामने से रखा था. सो लेट्स ट्राई टू सी दैट. लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करते हैं, सो डिवाइड देम इनटू टू कैटेगरीज, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. यूनिसेल्युलर के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? आप लोग अनम्यूट करके डायरेक्टली बोल सकते हो. व्हाट कैन बी द एग्जांपल ऑफ यूनिसेल्युलर एनिमल्स? Sir, amoeba. Amoeba, okay. Paramecium. Paramecium, Bacteria. Protozoa. bacteria, ठीक है. Virus. Yeast, right. So these are example, yes, unicellular animals. बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है. Let's see them. Made up of single cell, right? Multicellular are made up of many cells. Obviously, we are all going to be multicellular. So यहाँ पे सिंगल सेल में क्या होता है? एक सिंगल सेल ही सब कुछ संभाल रहा है. All the functions are carried out by a single cell. Multicellular में क्या होगा? आपके यहाँ पे many cells group together in a single body and assume different function in its to form a various body part. So basically you have a organ formation happening आपके body के अंदर, टिश्यू बनते हैं, और सबका अलग अलग यहाँ पे आपका काम होता है. So that is something you get to see. Chlamydomonas एक example यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग. Paramecium and bacteria. These are the very good example of my unicellular animals, right? Organisms. Chlamydomonas एक आपका यहाँ पे algae होगा, याद रखना. Chlamydomonas is your green algae. ये आपका green algae अगर आपको मालूम ना तो. Paramecium तो आपका protozoan है, and bacteria is bacteria, right? Multicellular में you have your fungi, plants, animal. These are the three things we'll get to see. They are commonly seen in the multicellular. That's a very simple thing you can remember, right? Cell theory की हम लोग बात करते हैं. So different scientists propose different theories regarding the study of cells. काफी scientists साथ में आए. They said कि यार ये हो सकता है, वो हो सकता है, but जो main scientists आप कहते हैं यहाँ पे, they are my Sheldon and Schwann. So Sheldon and Schwann, they came together and they gave us the cell theory in the year 1839. 1839 के अंदर आके इन्होंने आपकी cell theory आपके सामने यहाँ पे रखी, right? And इन्होंने यहाँ पे क्या बोला? So let's see इनकी cell theory क्या रही थी. It states that all plants and animals are composed of cells and cell is a basic unit of life. तो ये चीज उन्होंने यहाँ पे बोली थी यार, सारे animals और plants cell से बने हुए होते हैं and it is a basic unit of your life. So that is something they said, right? इसके अलावा एक चीज याद रखना, प्लीज एक चीज याद रखना आप लोग यहाँ पे, कि जब इन दो साइंटिस्ट ने आपकी सेल थ्योरी दी थी, उनको ये मालूम नहीं था कि सेल कहाँ से आ रहा है. वो सेल के बारे में कुछ चीजें जान चुके थे कि यार सेल ही सब कुछ है, सेल ही आपके बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, या आपके सारे ऑर्गेनिजम्स में आपको मिल जाता है, बट उनको ये नहीं मालूम था कि सेल आपका आ कहां से रहा है. सो प्लीज ये चीज याद रखना. दे न्यू एवरीथिंग बट दे हैड नो क्लू कि आपका सेल एक्चुअली आता कहां से. इसको लेके अभी भी चीजें क्लियर नहीं थी. So that is one thing should be clear to all of you. अच्छा मुझे ये बताओ, क्या यहाँ तक आपको चीजें समझ आ रही है? Are these things clear to all of you? यहाँ तक सबको? Yes, sir. Yes, sir. Right? Yes, sir. Please do let me know if there is something you are not able to understand or if there is something which has to be stopped. तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले. मुझे बताइए, there was a book written by Robert Hooke. उसका नाम क्या था? बताइए अवंतिका, बोलिए. Sir, micrographia. Right, Micrographia was the name of the book which was written over there. Right, बढ़िया, ठीक है, great. All right. Then I have a question. My question is कि आपके रॉबर्ट ब्राउन ने he actually saw the nucleus for the very first time. कौन से प्लांट के अंदर उसने ये देखा था? हैंड रेज करेंगे आप लोग. बताइए राघव, tell me. Orchid plant.
ऑर्किड प्लांट के अंदर ही एक्चुअली सॉ दैट पर्टिकुलर ऑर्किड प्लांट में कहाँ पे देखा था, किसके सेल्स को निकाल के देखा था, रूट के सेल्स को निकाल के उसने वहां पे ऑब्जर्व किया था. ट्रू, वेरी ट्रू. ठीक है. ऑलराइट, देन यू हैव दिस एंटोन वॉन लीवनहॉक. इन्होंने लाइफ सेल्स देखे थे, राइट? एंड नाउ यू हैव रेज्ड योर हैंड लाइक बिफोर कंप्लीटिंग द क्वेश्चंस. बढ़िया. सो लाइफ सेल उन्होंने बहुत सारे देखे थे. ही सॉ द आरबीसी, प्रोटोजोआ एंड स्पर्मेटोजोआ वर द सेल्स ही ऑब्जर्व. ठीक है. हाँ जी बेटा, बताइए, कुछ क्वेश्चन है आपका, बताइए. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन प्लीज गो अहेड एंड आस्क अ क्वेश्चन. यस. No, sir. ऑलराइट, ठीक है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. याद रखना, सेल थ्योरी इन्होंने आगे रखी थी, बट अपेरेंटली दे हैव नो क्लू कि सेल बन कहां से है, राइट? उनको अभी तक आइडिया नहीं था इस चीज को लेकर. तो ये बात प्लीज आप हमेशा याद रखना. एंड याद रखना, दिस थ्योरी केम लाइक वाज पुट फॉरवर्ड इन द ईयर 1839. इस साल के अंदर इस थ्योरी को हमने यहाँ पे सामने रखा था. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट? Yes, in case if someone has a question, please go ahead and ask a question directly. Sorry, sir. There was some issue. It was raising. चलो चलो, कोई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, राइट? सो याद रखना, सो यू हैव दे हैव डिस्कस अबाउट एनिमल टिश्यूज एंड प्लांट सेल के बारे में उन्होंने यहाँ पे बात किया था. हाँ. नाउ ओवर हियर यू हैव दिस पर्सन, रुडोल्फ वर्चॉय, राइट? वर्को. So Rudolf Virchow was a person who actually told us something monumental. He was the person who actually told us कि cells come from the pre-existing cell. ये बात याद रखना कि सेल थ्योरी जब आपने आगे रखी थी, आपको नहीं मालूम था कि यार सेल्स आ कहां से रहे, राइट? टिल देन. बट इन द 1885 Rudolf Virchow actually told us कि cells come from pre-existing cell. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी. अगेन, one more name of the scientist which you have to know over here, Rudolf Virchow, and he actually told us that your cells are going to come from the pre-existing cell. तो पुराने सेल्स में से ही आपके नए सेल्स बनते हैं. अब ये बात हम लोग ये टाइम पे तो काफी क्लियरली जानते हैं, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वो टाइम पे किसी को मालूम नहीं था, राइट? So that is something they were able to understand because of the Rudolf Virchow. They were able to know this thing that all cells rises from the pre-existing cell, right? That's what he said. अब ये बात भी उसने इंग्लिश में नहीं बोली थी, ये बात भी इन सर ने इंग्लिश में बोली नहीं थी. So let me just write it down over here. He wrote something. He said something. Omnis cellula e cellula. That is something he said. You have this omnis cellula e cellula. ये स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ पे दिया था. Now this statement actually means the same thing, that cell come from pre-existing cell. तो ये स्टेटमेंट याद रखना जो उन्होंने यहाँ पे लैटिन में दिया था. So that's what he said, that omnis cellula e cellula, that means cells come from pre-existing cell. ये एक बात आप यहाँ पे याद रखना. और जब भी एक टर्म आपके सामने आएगा, ये वाला सेंटेंस जब बोला जाएगा, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आना चाहिए, एंड दैट इज माय रुडोल्फ वर्को. सो ये आपको इतना, आपको इसको याद रखना पड़ेगा. दैट इज द वन मोर नेम यू हैव टू नो, राइट? सो बेसिकली सेल की जो हिस्ट्री होती है उसके अंदर आपको इतने ही नाम याद रखने हैं. दीस आर द फ्यू नेम्स यू हैव टू नो इन द हिस्ट्री ऑफ द सेल्स, एंड यू विल बी गुड टू गो अगर आपको इतनी चीजें याद रहती हैं यहाँ पे तो. ठीक है. नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सी फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम. एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं बेस्ड ऑन दिस. इसके लिए आप हैंड रेज करें. टू आंसर दिस क्वेश्चन यू हैव टू रेज योर हैंड. क्वेश्चन नंबर 9, द dictum omnis cellula e cellula was proposed by. Oh, you have raised your hand, all of you. Very good. Then बताइए प्रिंस, क्या लग रहा है आपको इसके अंदर आंसर? सर ऑप्शन बी, वर्को. ऑलराइट, ठीक है. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर. वर्को इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही. वेरी गुड. राइट. सो ये भी हमने किया था. नाउ लेट्स ट्राई टू आंसर दिस. ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हो. आपने बेसिक सेल तो आपने पढ़ाई है. Which of the following is absent in the animal cell? इनमें से कौन सा आपके यहाँ पे रहेगा absent in the animal cell? You can raise your hand. मोहम्मद सुभान, बताइए. मोहम्मद, सर एसपीएम. ये टेल मी, बोलिए. सर एसपीएम. Sir, may I tell? Wait. I couldn't like.
गॉट यू आंसर मोहम्मद, मैं समझ नहीं पाया आपका आंसर, एक बार फिर बोलेंगे आप? ऑलराइट, Sir, selectively permeable membrane. अरे एक सेकंड, आई थिंक लाइक द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, इनमें से कौन सी चीज आपके एनिमल सेल में एब्सेंट है? ओह बाय द वे, आई होप यू ऑल ऑफ यू कैन सी द स्क्रीन राइट नाउ, Yes, sir. Yes, right? sir. You can see. The following is going to be absent in the animal cell. So it's a cell wall, cytoplasm, centrioles, and ribosomes. So all right, let's go ahead with the अवंतिका, आप बताइए क्या लग रहा है आपको इसके अंदर आंसर? सर ऑप्शन ए सेल वॉल। All right, yes, cell wall is something जो आपको animal cell में कभी नहीं मिलेगा. You will never have the animal cell having the cell wall, right? Cell wall is something आपको मिलता है आपके plants के अंदर. क्या आप कोई मुझे बता सकता है plants के अलावा और के मुझे cell wall मिलता है नहीं मिलता? Anyone, any other animal other than plant that can have a cell wall? Anyone of you? Tell me. Yeah, just unmute yourself and tell me the answer. अगर आपके पास है तो बताइए. सर एल्गी। प्लांट्स के अलावा कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मुझे सेल वॉल मिलेगा? सब बैक्टीरिया। Right. Bacteria will have. Algae will come under the plants, na? So that is the same thing, right? Anything else other than this? बैक्टीरिया आ गया, प्लांट आ गया, एक और चीज बता दो मुझे. आई एम जस्ट होपिंग फॉर वन मोर थिंग. Sir, fungi. वेरी गुड, दैट इज योर फंजाई. बहुत बढ़िया, राइट. सो फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्लांट्स विल बी हैविंग द सेल वॉल ऑल द टाइम. सो दैट इज समथिंग यू शुड बी क्लियर विद. ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं. नाउ आई हैव एडेड फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर. यू कैन डू देम एज योर होमवर्क. 2-3 क्वेश्चन ही है, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं. यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट देम, यू कैन डू देम एज अ होमवर्क. नाउ बिफोर वी रैप अप द क्लास, वील डू अ पोल. क्लास को रैप अप करने के पहले फटाफट एक पोल रन करते हैं. And poll run करने के बाद we'll have a quick revision of few things and then we'll wrap up the class. ठीक है? So now let me just go back over here and let me just quickly run a poll with you. Just give me a minute. By the way, आप लोगों को poll join करना आता है? आप लोगों को? Yes, You sir. यस सर। All right, great. So अभी आपके सामने यहाँ पे एक right. Just give me a minute. All right. By the way, I want to ask you one thing. Are you okay with the speed of the class? क्लास के स्पीड से आपको लाइक चलेगा थोड़ा स्लो करना है? No, sir. It's totally यस fine. सर। प्लीज स्लो करना तो बता दो. लाइक या आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट. सर दैट इज ओके। Like along with that, language. Tell me about the language other thing. Do you want to be okay? Like, are you okay with the language you are running in the class, or you want to change that? No, sir. It's fine. यस सर। Know that. Okay, and then you have. All right. So now I'll just run this over here. Okay, I have just launched the poll. Please go ahead and give me your answer. All right, I'm receiving your answers right now over here. All right, till then आप लोग यहाँ पे आंसर कर रहे हो. So yeah, just we'll have some wrapping up conversation with you.